20, K. Vasan, son of Congress Party senior leader Mupanar. They are contesting 6 seats, the symbol of remaining 7 seats, and the NDA we are giving to smaller parties. There is a lot of change compared to the 2019. There is a wave in favor of DMK at that time. After 2 years, today situation total different. Today, Narendra Modi ji, under leadership of the in Tamil Nadu, 2 years in COVID also, we did a lot of Tamil Nadu Chief Minister, Honorable Panneer Selvam ji also is a name as a good Chief Minister, as a good, and he given a stable government, good governments in agriculture sector, in the industrial sector. There is a lot of development lost, and particularly national highways. Government delivered good governments. COVID pandemic situation, Tamil Nadu government good, and they got the all angles. They did a good government. They controlled COVID pandemic. In this situation, people are afraid DMK. People will not forget this is a family rule, dynasty politics, DMK, rowdyism, gundaism. In these elections, they are entering third generation family politics in Tamil Nadu. Third generation. Everybody knows DMK dictatorship politics, and one family party, only family CM, only family rule. Tamil Nadu people are not ready to accept this situation. That's why Bharatiya Janata Party and NDA, definitely we are going to form once again in Tamil Nadu. Thank you. Now, question will take later. Now the Kerala. In Kerala, the Bharatiya Janata Party, we have a alliance with 4 parties. Number 1, BDJS. The second party is AIDMK. The third is JRS led by Janna and Kamraj Congress, that is 4th party. Kamraj Congress with the BJP symbol. We have alliance with all 4 parties, and we are going. BJP will be contesting in 115 seats alone. BJP will be contesting in 115 seats, and rest of the seat out of 140 left out to be 25 seats around, that will be left to the 4 parties. Many senior leaders are contesting from BJP symbol in the Kerala. A large number of senior leaders, they are joining from LDF and UDF to the Bharatiya Janata Party. Because there is huge corruption in the government. You all know the kind of corruption has reached at the level in the office of the Chief Minister, you all aware of. Lot of celebrities and professionals in Kerala, they have also joined the Bharatiya Janata Party. And they are continuously joining the Bharatiya Janata Party. Our state president, Sri K. Surendran will be contesting from 2 assembly constituencies. One, Manjeswaram in Kasaragod district, and second is Konni, that is in Patham Thitta,
Pathamdita. Yes. So he is contesting from two constituency, one Manjeswaram and second is Konni, our K.S. Surendran. Metroman, whose name whose name is well known to every Indian, Dr. E. Sridharan, will be contesting from Palghat. Palakkad. In Malayalam, it is called Palakkad. Yes, you can say Palakkad also. So he will be contesting from there. And by joining him, there is a big boost in the BJP Karyakarta and public there. Former State President Sri Kummanam Rajasekaran, he will be contesting from Nemon constituency. And senior leader of the Bharatiya Janata Party, P.K. Krishnadas, he will be contesting from Katakada. C.K. Padmanabhan will be contesting from Dharmadam constituency. Rajya Sabha MP and famous person Mr. Suresh Gopi. Suresh Gopi will contest from Thrissur. And Sri Alphonse Karnatharam will contest from Kanjirapalli. He will contest from there. Yes. Or Suresh Gopi will contest from Thrissur. And a very well-known academician, retired Vice Chancellor, Dr. Abdul Salam. Dr. Abdul Salam, he is also contesting from Tirur. TIRUR. Now, one seat is there, Manawadi. That is a ST reserve seat. First tribal engineer, Manikuttam. He will be contesting from there. सीट का नाम है मानववाड़ी. ओके. और श्री कृष्ण कुमार will contest from Thiruvananthapuram Central, and former DGP Dr. Jacob Thomas IPS will be contesting from Iranjalkuda. Okay, so now with these number of the celebrities, the retired Vice Chancellor, IPS officers, and over and above the Metroman, the all big personalities, they have joined the Bharatiya Janata Party and they are contesting from BJP symbol under the leadership of the most popular person, Mr. Narendra Modi ji. And we hope and we are confident that we are going to get very good number of seats to form the government there.
जहां तक असम का प्रश्न है, असम का आपको पहले भी हमने पहले और दूसरे फेज की लिस्ट जारी कर दी है और जैसा आप जानते हैं कि एजीपी और यूपीपीएल दोनों ही हमारे गठबंधन के पार्टनर हैं, एनडीए के पार्टनर हैं और भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के 92 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पे जो चुनाव हमारे सहयोगी दल लड़ेंगे। हम लोग आज जो तीसरे फेज है उसके 17 नाम की घोषणा कर रहे हैं, 17 नेम्स की, और इसके साथ ही सभी की सभी सीटों की घोषणा असम में भारतीय जनता पार्टी की पूरी हो जाएगी। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि पहले और दूसरे फेज की जब कैंडिडेट्स की नाम भारतीय जनता पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ है, पूरे असम में कार्यकर्ताओं में भी जनता में गजब का उत्साह है, काफी उत्साह है। और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि असम में पहले से भी अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। 2-3 नाम आपके बता देता हूं कि जैसे बरखेड़ी से नारायण डेका, धर्मपुर से लड़ेंगे चंद्रमोहन पटवारी जो वहां पे मंत्री हैं, पहले भी यहीं से लड़ते थे चंद्रमोहन पटवारी जी, वहां सीनियर नेता भी है और मंत्री भी हैं। उसी के साथ हाजो से सुमन हरप्रिया, पहले भी सांसद थी, पहले विधायक थी, उनकी माताजी सांसद थी, केंद्र में मंत्री थी, उनकी लड़की है और अब यहां से चुनाव लड़ेंगी। और गुवाहाटी ईस्ट से पहले भी सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी चुनाव लड़ते थे और मंत्री भी हैं, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। दिसपुर वहां से अभी के विधायक और प्रोमिनेंट लीडर अतुल वोरा जी चुनाव लड़ेंगे। असम में कुल मिलाकर के 17 सीटों की अभी हमने जो घोषणा की है उसे भारतीय जनता पार्टी ने सभी की सभी सीटों पे अपनी उम्मीदवार को तय कर दिया है। लोगों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। बहुत ही अच्छा माहौल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में हम पहले से अधिक सीट जीत करके वहां सरकार बनाएंगे। अब मैं पश्चिम बंगाल का, लेट मी कंप्लीट, देन आफ्टर दैट यू कैन कम बैक। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से परिवर्तन की लहर चल रही है और सत्ता परिवर्तन की लहर इतनी तेज चल रही है कि जिस प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश में 3/4 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसी प्रकार की सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है और 200 से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतने वाली है। पहले दो फेज की हमने पहले से अनाउंसमेंट कर दिए हैं सारी सीटों का। अब जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज में 31 सीटें हैं। आज हम 27 सीटों को, 27 सीट को प्रत्याशियों के लिए घोषणा यहां से कर रहे हैं, जिसका केंद्रीय चुनाव समिति में ने उसका अनुमोदन किया है। उसी के साथ साथ चौथा फेज जो है, फोर्थ फेज में 44 सीटें हैं। 44 सीटें में 36 सीटें, 36 सीट की घोषणा आज पश्चिम बंगाल के यहां से कर रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर थर्ड और फोर्थ फेज देखें तो हम 63 कैंडिडेट इन दोनों फेज की घोषणा आज हम यहां से कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि अशोक लहरी बहुत बड़ा नाम है आर्थिक जगत में। श्री अशोक लहरी, वेल नोन इकोनॉमिस्ट इन द कंट्री। अशोक लहरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होगी अलीपुरद्वार से। यस, वहां से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अलीपुरद्वार। श्री अशोक लहरी, eminent economist, everyone knows him, very popular person. दूसरा उसी के साथ वेरी सीनियर लीडर, बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं राजनीति में, जो ममता बनर्जी की पार्टी से त्याग पत्र दे के आए थे, ऐसे राजीव बनर्जी, वह जोमजूर से चुनाव लड़ेंगे। डोमजूर, यस, बंगाली में डोमजूर से चुनाव लड़ेंगे। और बहुत ही
प्रोमिनेंट वहां के मिनिस्टर थे टीएमसी में, छोड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उसी प्रकार से जो रविंद्रनाथ भट्टाचार्य यह चुनाव लड़ेंगे सिंगूर से। यस, अभी सांसद, राज्यसभा के सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता, eminent academician, journalist also, Sri Sapan Das Gupta will contest from Charokeshwar, हिंदी में तारकेश्वर समझिए, बंगाली में तारकेश्वर, ताराकेश्वर, TARAKESSWAR, तारकेश्वर, अलीपुर द्वार, ठीक है। नाउ अभी आगे सुनो भैया, तब तो जो अभी के सांसद नीतीश प्रमाणिक, हाँ, निशित प्रमाणिक निशित प्रमाणिक जी जो अभी सांसद हैं, वह चुनाव लड़ेंगे दिनहाटा से। दिनहाटा सांसद हैं, दिनहाटा से चुनाव लड़ेंगे। और बहुत ही फेमस, जिसे गायक कहते हैं, उसी के साथ साथ अभी केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी चुनाव लड़ेंगे चंडीताला से। चंडीताला बाबुल सुप्रियो जी चंडीताला से लड़ेंगे। चंडीताला गौड़ा क्या? पढ़ो। और फिल्म एक्ट्रेस चंडीताला से जज दासगुप्ता, टालीगंज से है शायद, टालीगंज से बाबुल सुप्रियो। सॉरी दोबारा करेक्ट कर लेते हैं। टालीगंज, आई एम सॉरी, टाइपिंग कोई मिस्टेक हुई है। तो श्री बाबुल सुप्रियो जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वह चुनाव लड़ेंगे टालीगंज से। टालीगंज TOLLYGANG, टॉलीगंज। चंडीताला से एमिनेंट और एक्टर चंडीताला से बहुत ही प्रसिद्ध जो एक्टर हैं श्री यश दासगुप्ता चुनाव लड़ेंगे। यश दासगुप्ता, का नोट गलत, पॉपुलर सिनेमा एक्टर। अच्छा, और बहुत ही फेमस फिल्म एक्ट्रेस श्रीमती पायल सरकार वह चुनाव लड़ेंगी बेहाला से। बेहाल होता ना, बेहाला ईस्ट से बेहाला ईस्ट। डॉक्टर इंद्रनील खान बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, यह चुनाव लड़ेंगे कस्बा से। डॉक्टर इंद्रनील खान, फेमस डॉक्टर, ही विल कंटेस्ट फ्रॉम कस्बा। और अनदर फिल्म एक्ट्रेस, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस है श्रीमती तनुश्री चक्रवर्ती, वह श्यामपुर से चुनाव लड़ेंगी। हावड़ा श्यामपुर। हाँ। और लॉकेट चटर्जी सांसद हैं भी। लॉकेट चटर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह चुनाव लड़ेंगी चुचुरा से। CHURA। हाँ, चुनचुरा बोलो, चुचुरा बंगाल में चुचुरा। CHUNCHURA।
अनदर रंतिदेव इसका पहले बोलना एमिनेंट पत्रकार इसका रंतिदेव सेनगुप्ता हावड़ा दक्षिण इसका पहले बोलो और अनदर श्रीमती अंजन बासु अंजना 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 बासु विल कंटेस्ट फ्रॉम सोनपुर साउथ सोनारपुर सोनारपुर साउथ से लड़ेंगे चुनाव अंजना बासु सोनारपुर सोनारपुर साउथ क्या लगता है रंतिदेव सोनारपुर साउथ रंतिदेव सेनगुप्ता और हावड़ा दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है रंतिदेव सेन गुप्ता। एमिनेंट पत्रकार ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार हैं रंतिदेव सेन गुप्ता बहुत। हाँ, तो इस प्रकार से मित्रों हमने आपको आज तमिलनाडु, केरल और असम, पश्चिम बंगाल के नामों की घोषणा की है। जो केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम का अनुमोदन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान सब लोग खुशहाल हैं, प्रसन्न हैं और सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं और देंगे भी। अब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बैठी हैं जो पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी प्रोमिनेंट लीडर हैं, वह आप सबके बीच में कुछ पश्चिम बंगाल के बारे में बताएंगी। नमस्कार। पहले मैं बांग्ला में बोलना चाहती हूँ, बाद में अगर आपका कोई सवाल है तो मैं हिंदी में बता दूंगी। হয়ে যাবে, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়ের আমাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন এত গরমাগরম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, শুধু গোটা দেশের মানুষ তাকিয়ে আছে তাই নয়, বিশ্বের যেখানে যেখানে ভারতীয় তথা বাঙালি আছেন প্রত্যেকে পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনের জন্য মুখিয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গে বিগত 10 বছর ধরে যে পরিবর্তনের সরকার ছিল সেই পরিবর্তনের সরকারে মানুষ সম্পূর্ণভাবে হতাশ হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সমস্ত ক্ষেত্রে যুব সমাজের কাছে একটা হতাশার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেই হতাশার পরিস্থিতি থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে চায়। ভারতবর্ষের দক্ষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে লক্ষ্য সোনার বাংলাকে সামনে রেখে যে আহ্বান করা হয়েছে এবং আসল পরিবর্তন বলা হয়েছে, যে পরিবর্তনকে আমরা বলছি যে এবারে সত্যিকারের পরিবর্তন হবে, শুধু রাজনীতি করার জন্য রাজনীতি নয়। বিগত 44 বছর ধরে মানে কমিউনিস্টদের 34 বছর এবং তৃণমূল সরকারের 10 বছর, 34 বছর শুধুমাত্র রাজনীতি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গও সব দিক থেকে পিছিয়ে গেছে। লকডাউনের সময় এবং করোনা কালে পশ্চিমবঙ্গের এই অসহায় চরিত্র, অসহায় পরিস্থিতি কি শিক্ষাক্ষেত্রে কি কর্মক্ষেত্রে, যখন আমরা দেখেছি লকডাউনে লাখে লাখে শ্রমিক বাইরে আছে। পশ্চিমবঙ্গ একসময় গোটা বিশ্বকে নয় গোটা দেশকে এমিনেন্ট পার্সোনালিটি, যাদেরকে বরিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে উপহার দিয়ে এসছে। শিক্ষাক্ষেত্রে হোক, চিকিৎসা ক্ষেত্রে হোক, অভিনয় জগতে হোক, পরিচালনার জগতে হোক, সাহিত্য ক্ষেত্রে হোক, ধর্মীয় ক্ষেত্রে হোক, সমস্ত ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সবসময় বিশিষ্ট ব্যক্তি, বরিষ্ঠ ব্যক্তি উপহার দিয়েছে। আজকে 44 বছর কমিউনিস্ট এবং পরবর্তীকালে তৃণমূলের সরকারের পরে পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা পরিযায়ী শ্রমিক প্রদান করতে পারছি, এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ আজকে বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে সমস্ত মানুষকে, যুবককে ঘর বাড়ি ছেড়ে মা বাবাকে ফেলে বাইরে যেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার চেয়ে, পরিত্রাণ চেয়ে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে শুধু সমাজের বা তৃণমূলের নেতৃস্থানীয় নয়, একদম জমিনি স্তর
মানে একদম নিচের স্তরের কর্মীরা যারা দলে দলে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে। নির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরেও মালদার একটি ক্ষেত্রে যেখানে আদিবাসী মহিলা নিজে বলেছেন যে এখান থেকে তৃণমূল জিততে পারবে না, সেজন্য তিনি প্রার্থীপদ পরিত্যাগ করেছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। মালদা, উত্তর দিনাজপুর, উত্তরবঙ্গ হোক, জঙ্গলমহল হোক কিংবা দক্ষিণবঙ্গ, সর্বত্র একটা পরিবর্তনের জন্য, আসল পরিবর্তনের জন্য মানুষ মুখিয়ে আছে এবং স্লোগান তৈরি করেছে। এইবারের ভোট উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজেপির পক্ষে, মানুষ এটা স্থির করে নিয়েছে। আর নয় অন্যায়, এই স্লোগান দিয়ে মানুষ রাস্তায় সর্বত্র পরিবর্তনের আশা নিয়ে ঘুরছে। সমাজের সমস্ত স্তর থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিনিধিত্ব রাখছে এবং নির্বাচনে প্রত্যাশী হিসেবে, নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে আমরা রেখেছি, যাতে আমরা একটা খুব সুন্দর সরকার মানুষকে উপহার দিতে পারি, যেই সরকার উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং সোনার বাংলার লক্ষ্যে পশ্চিম বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। নমস্কার, ধন্যবাদ। अभी ज्वाइनिंग होने वाली है, ले आओ भैया। इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी आप सोच चुके हैं, उसमें हम कोई टिप्पणी करने का जरूरत नहीं। बंगाल के जनता क्या सही है क्या गलत है, बंगाल की जनता जजमेंट देने वाला है। बलबीर सिंह राजेवाल जी किसान नेता हैं बड़े, उन्होंने कल कोलकाता में कहा कि किसी को भी वोट दो लेकिन मोदी को वोट मत दो, क्योंकि मोदी पाकिस्तान से भी बड़े खतरा है। इतना मैं कह सकता हूं कि जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव, चाहे राजस्थान में रहे हो, चाहे कर्नाटक में रहे हो, चाहे गुजरात में रहे हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा सफलता प्राप्त हुई। 2-3 महीने के अंदर की बात बता रहा हूं। वन साइडेड भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सफलता प्राप्त हो रही है। राजस्थान में 21 में अगर 14 सीटें हम जीतते हैं, कर्नाटक में हम स्थानीय निकाय में 55% से अधिक सीट जीतते हैं। कुल मिलाकर गांव की जनता और किसान सब मोदी जी के साथ में, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। किसान, गरीब, आदिवासी, एससी सभी वर्ग आज मोदी जी के साथ में, कोई चिंता की बात नहीं है। वो किसान नेता ने कुछ किसान के कहने, कुछ लोग उकसावे में बोलते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं होता। यह तो बहुत दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। One by one. Yeah, you. बुलाओ यार। देखिए, अभी इस विषय में मैं खास कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। एक ही शब्दों में मैं इसको निपटना चाहूंगी। जबकि नंदीग्राम की साधारण सामान्य जनता, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि नंदीग्राम ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया था, और आज वही नंदीग्राम को साजिश का तत्व खड़ा कर दिया है ममता बनर्जी। इससे बहुत भारी चोट पहुंचाया है नंदीग्राम वालों को। और आज जो इन्होंने माहौल बनाना चाहती है, इसका क्या परिणाम होने वाला है, नंदीग्राम वालों को कितना चोट पहुंचा है, इसका जवाब जब 2 मई को जब ईवीएम खुलने वाला है नंदीग्राम से या पश्चिम बांग्ला से, तब पता चलेगा जनता किस रूप में इस आचरण का लिए है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा है कि इसमें जो केंद्रीय चुनाव समिति के
सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और उसी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यह प्रदेश से चर्चा करके यह निर्णय करते हैं और जिसकी आपको घोषणा की गई है। Sir, just a second. The question. नहीं, बीच में 2-3 सीटें और की घोषणा हुई थी ना। तो कितना बचा? चलो 1-2 बचा होगा तो या तो हो गया हो जाएगा। अच्छा, now I think just a second. About पुडुचेरी के अभी हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो बताएंगे, उसकी भी घोषणा जल्दी होगी। अब पुडुचेरी की ज्वाइनिंग हो रही है। Excuse me. We will have a question answer session. Somebody is joining. Let me must make the introduction. Somebody from very senior leader from Puducherry is joining. Mr. P. Kannan, who has been a member of parliament earlier, who has been a senior minister in the Puducherry government. He has been in the politics for the last 4 decades and 5 decades. And we have Arjun Meghwal ji, who is in charge of Puducherry. He will first speak for a few words and then we will make the. धन्यवाद जफर जी। मैं अरुण सिंह जी और हमारे जी किशन रेड्डी जी और देवेशी चौधरी जी को बताना चाह रहा हूं, जफर साहब, ये हमारे पी कन्नन साहब, ये 4 बार जब एमएलए रहे पुदुचेरी विधानसभा के, तो होम मिनिस्टर भी रहे, स्पीकर भी रहे और हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। इतने सीनियर आदमी है, 5 दशक से ये सार्वजनिक जीवन में है और ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे 1 टर्म। इतने सीनियर आदमी हमारे पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आज समझ जाइए कि वहां क्या चाशनी चल रही है इस समय। चाशनी, यू अंडरस्टैंड द चाशनी? हाँ, है एटमॉस्फियर, यू कैन से। क्या वातावरण चल रहा है, और उस वातावरण से ही अंदाज लगा लीजिए कि पुदुचेरी में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। अब मैं आपका स्वागत करता हूं पी कन्नन साहब का। कन्नन पी कन्नन, और साथ में इनके लड़के भी ज्वाइन कर रहे हैं, विघ्नेश जी। विघ्नेश, हाँ, नहीं आप उठो मत, अरुण सिंह जी आप रहो। विघ्नेश जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। और जो जैसे आपने बताया कि भी पुदुचेरी में क्या हो रहा है, हमारे यहां 30 सीट है, 16 सीट हमारे एनआर कांग्रेस के पास हमारे समझौते में गई है, 14 सीट हमारे पास है। हमारा जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो आज सेटल हो जाएगा और पुदुचेरी की भी घोषणा हो जाएगी। कहीं हम लेट नहीं है, हम समय पे ही सारे काम कर रहे हैं। हमारी जो स्टेट इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है वो हो गई है। हमने जो मंडल वाइज जो हमें नाम मंगाने थे वो हमने मंगा लिए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी के नेतृत्व में हम लगातार पुदुचेरी में काम कर रहे हैं और जल्दी ही उनके नाम भी आपके सामने आएंगे। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनके नाम आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। नहीं, सब कुछ शायद आज और हो जाएगा, आज या कल में सब हो जाएगा। कन्नन साहब, कन्नन get the list right now. You must have reached to a mail also. You check. उनको बोलो, ये बोलो। You check your mail. So we have already ज्वाइन करें। signed. कहाँ लाओ पता। अरुण सिंह जी ज्वाइन करें, मैं करा देता So the seats are left. हूँ। जी किशन जी, Look, this is the election committee will decide.
this is what I can say. This is the Central Election Committee will decide on after discussion with the state. Now joining to kar. Yes, yes. नहीं मैं यस सर वेलकम 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 बीजेपी वेलकम वेलकम क्या क्या दे दिया था? यस सर मैं उधर आता हूँ. हाँ उधर उधर अरुण सिंह ये हमारे जनरल सेक्रेटरी है मंजूर एक बुके तो थैंक यू आप नहीं आप दोनों पकड़े. नहीं. Welcome to the party in the party. Headquarter. Welcome. This is the receipt. Now, okay, receipt. Vijesh Khan. थैंक यू विघ्नेश कम विघ्नेश यस धन्यवाद सर बहुत थैंक यू मैडम सर मैडम लिस्टर है मैडम कहाँ से ले जी किशन जी आइए आप क्या लीजिए हाँ ये दीजिए नहीं आप दीजिए जी किशन जी आप दीजिए यस पकड़ो रिसीप्ट पकड़ो. Congrats. Thank you. Thank you. शीज आल्सो हो गया खत्म. चलो जो हो गया. हो गया, thank you very much. then you do okay thank you कुछ बोलना है? नहीं हो गया